in the region, it is in India 1%, and as I have heard, in India, 1% tax is there. There are certain exemptions available also, but alternate is there, whether income tax or wealth tax, whichever is higher. France, the developed nations, they also have it, and their maximum rate over there is 1.8% on 16.7 million euros of wealth. 16.7 million euros of wealth above 1.8%. 8 million euros exempt. Constitutional hindrance after 18th Amendment, in my humble view, I'm not saying it is there. It is my view personally. Entry 50 has been amended, and it reads now as taxes on capital value, not included taxes on immovable property. Needs to be looked into. I think federal government has no power to levy wealth tax on immovable property now. So what are you going to do? You are going to bring wealth tax on movable assets only. Next, please. I need not to say anything. I've taken much of your time. I'm sorry. Crossed the limits also. Thank you very much. Thank you, Naveed Saab, for a very detailed presentation. I would now like to invite Mr. Shabbar Zaidi, our next guest speaker of the session, who doesn't need any introduction, who's mashallah very renowned personality in the accounting and tax circles of this country. Shabbar Saab has been the frequent speakers at the pre and post budget sessions. He has been past president of ICAP and SAFA as well. He has been representing in various government committees on tax and structural reforms. He is currently the chairman of the committee dealing with IMF on behalf of FBR for implementation of VAT as well. So ladies and gentlemen, with this, I would now like to invite Shabbar Saab. Please give him a very warm welcome. Mr. Khawar Khurshid Bhatt, Mr. Naveed Indrabi, sir, before I start the session, I hope sir, यहाँ प्रेस अदनान नहीं है कि हम कुछ खुल के बातें करेंगे. ये हमारे घर की बात है कि इंस्टीट्यूट का सेमिनार है. आई थिंक सारे हमारे अपने लोग हैं. असद साहब आप भी हमारे साथ हैं. This is I have been always talking on income tax, and I think Mr. Naveed has taken care of all the income tax issues, and is very rightly so. So I have been given the task on talking to the people. Khawar साहब थोड़ा हम economics की बात करेंगे, not the tax, और कुछ सच कुछ हकीकतें बयान करने की कोशिश करेंगे. और let's go ahead please. मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से. सर ये आवाम का यही हाल है इस वक्त कि नज़र आ रहा है, मगर आवाम में एक खामोशी है, वो कहीं फट नहीं जाए. एक खामोशी है, वो खामोशी बड़ी डेंजरस है. तो द क्वेश्चन इज दैट ये जॉन एलिया ने कहा था कि हम अंदर से खामोश हैं, अगर हम बोल पड़े तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा. नेक्स्ट, मेरा जो सेशन है इसमें मेरी जो हेडिंग्स हैं वो ये हैं कि आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी रियलिटीज़ क्या हैं, कुछ रेलिवेंट फैक्टर्स क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या है, और हम 2011-12 में क्या देख रहे हैं, और हम किस ट्रैप में फंस गए हैं, हमारी पॉजिटिविटी क्या है, और इकोनॉमी की एक और दूसरी साइड क्या है, और आखिर में खावर साहब के लिए कि हमें कितने पैसे चाहिए सही सब कुछ सही करने के लिए. अकाउंटेंट है ना सारे, हमें कितने पैसे चाहिए ये सब कुछ सही करने के लिए. लेट्स बी वेरी फ्रैंक. और सोल्यूशन मेरे जहन में 2012-13 के लिए क्या है, और 2012-13 तो शॉर्ट टर्म है, मेरे हिसाब से 2012 से 20 तक की सोल्यूशन क्या है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ प्योरली. सर ये हमारे कुछ रेलिवेंट फैक्टर्स हैं. एक वॉर ऑन टेरर है, एक सैलाब है, एक फौज है, एक डॉलर है, एक रुपी है. हम इसी के अंदर घूम रहे हैं ना जी, हम इसी की कहानी पेश करते हैं. अब इसमें अगर आप इसको आगे पढ़ें, थोड़ा अंग्रेजी में बोलें तो प्रॉब्लम ये है, आज बड़ी स्ट्रेंज पाकिस्तान की पोजीशन है कि गवर्नमेंट इज शॉर्ट ऑफ रुपीस नॉट डॉलर. ये बड़ी अरसे बाद हुआ है कि गवर्नमेंट के पास रुपी शॉर्ट है, डॉलर शॉर्ट नहीं है.
Government is not short of dollar. Government is short of rupees. It is, and people's rupee is losing purchasing power. In simple word, inflation. लोगों के पास जो रुपया है उसकी पावर नहीं है, गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं है. सिंपल मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है. लोगों के गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं है, लोगों के पास जो रुपया है उसकी परचेजिंग पावर नहीं है. और हमें एक्सटर्नल सपोर्ट हमारे लिए रेलिवेंट, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहे वो लोन हो या ग्रांट हो, कोई उससे मसला हल नहीं होगा. आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एंड आई एम वेरी कैंडिड ऑन दिस मैटर. और अब बजट आएगा और गवर्नमेंट आके स्पीच करेगी, वो 2 स्टोरी पेश करेगी, वॉर ऑन टेरर और फ्लड्स. मगर ये दोनों स्टोरियाँ चलेंगी नहीं. मतलब दोनों स्टोरियाँ हैं, ये इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम नहीं है. स्टोरी ऑफ वॉर ऑन टेरर एंड फ्लड्स विल नॉट फ्लाई. And there is another very big ground reality that there is no concrete recovery plan, and I am saying a very big word, with any political party, technocrat like us and donor agency. किसी के पास concrete recovery plan नहीं है. मतलब हम सारे बातें करते हैं, मगर आप मुझे कहें कि आप मुझे एक प्लान दें कि 10 साल में आपने कैसे जाना है, क्या आपका रोड मैप है, तो neither political parties के पास concrete plan है, ना technocrats के पास है. हम मिनिस्ट्री लेने के लिए तैयार हैं, मगर मिनिस्ट्री में जब जाते हैं तो फिर वहाँ जाके फिर बैठ जाते हैं. तो मगर सिमिलरली डोनर एजेंसी के पास भी हमारी रिकवरी का कोई प्लान नहीं है. एंड द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज सिमिलर टू यूएसएसआर इन 1998. इंडिकेशन ऑफ लोकल करेंसी क्राइसिस, कोल्ड वॉर विद यूएसए, वी हैव अ वॉर विद इंडिया, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो एंड हाई गवर्नमेंट बोरोइंग. अगर आप यूएसएसआर को याद करें 1998 में, तो वहीं खड़ा था जहां आज हम खड़े हैं. आई डोंट वांट टू से मोर देन दिस. देयर आर सर्टेन अदर रेलिवेंट फैक्टर्स. एक तरफ आईएमएफ है, एक तरफ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ की शक्ल नजर आ रही है आपको, कुछ इसमें नहीं नजर आ रहे. एक तरफ ये मीडिया है, इसका भी एक बड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव रोल है. इस इकोनॉमी को इस शक्ल में लाने में कुछ पॉजिटिव रोल है, कुछ नेगेटिव रोल भी है. और हमारा एग्रीकल्चर है जिसने हमें कुछ सपोर्ट दी हुई है. IMF in my view is not a solution. It was never a solution, it will never be a solution. It was only a stopgap arrangement. वो कोई solution नहीं था, वो एक stopgap arrangement था जिस पे हम गए थे. और जो उनके चीफ ने हमारे बारे में कहा है वो मैंने कोट कर दिया है, मैं पढ़ देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है. ये प्रेजेंटेशन आप ले लीजिएगा. We will not let you die, but we cannot teach you how to live. ये मेरा कोटेशन नहीं है, उसका कोटेशन है. ये वर्ल्ड बैंक के चीफ ने कहा है हमारे बारे में कि हम आपको मंडे भी नहीं देंगे, मगर आपको जिंदा रहना सिखा नहीं सकते. हम आपको सीखना आप खुद है, सीखना चाहें सीखें, नहीं सीखना नहीं सीखें. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वेरी सीनियर ऑफिसर, एंड दिस इज बीइंग प्रूव्ड फॉर लास्ट 60 years. वो हमें बचा लेंगे आखिर में. मैं आज भी कह रहा हूँ बचा लेंगे. इस्लामाबाद में स्कूल से मैं बैठा हूँ इसलिए मुझे पता है कि आखिर में आगे कोई बचा लेगा, डिफॉल्ट नहीं करने देगा मुझे, ये मुझे पता है. मगर उस डिफॉल्ट नहीं करने में कहाँ पे आग लगेगी ये हमें नहीं पता. फ्रेंड्स, इन द वर्ल्ड इकोनॉमी मे नॉट बी रेलिवेंट. हम वर्ल्ड इकोनॉमी में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमी बैठ गई, छूट गई, चली गई. इन माई व्यू दे आर नॉट वेरी रेलिवेंट. द ओनली रेलिवेंट, उनका इफेक्ट हमारे यहाँ मार्जिनल आता है. हमारे लिए रेलिवेंट फैक्टर जो आता है वो आता है सिर्फ ऑयल प्राइसेस का, अगर बड़ा इफेक्ट आता है तो, विच अफेक्ट्स अस इन द इकोनॉमी. एंड एग्रीकल्चर इज स्टिल सस्टेनिंग द इकोनॉमी. ये आप जो कुछ भी आज आप जो मर्जी हम बोलें, जितनी मर्जी हम तकरीरें करें, एग्रीकल्चर आज भी हमें सस्टेन कर रहा है. ये रियलिटी है, इसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए. देन मीडिया, पॉलिटिशियंस एंड एकेडमिक्स आर इनसेंसिटिव ऑन रियल इकोनॉमिक इशूज. आप अगर इसको रियलाइज करें इस सारी सिचुएशन को, ऑल्दो 1 or 2 politicians are sitting here, but I feel that generally politicians are not sensitive enough to understand the sensitivity. Similar is the case with media. They are not understanding the sensitivity, the underlying problems which are giving there. Same is the case of academics. कराची यूनिवर्सिटी लम्स क्या कर रही है, मुझे तो आज तक मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा. हम इधर खड़े होते हैं, नवीद इजरावी साहब खड़े होकर कोशिश कर रहे होते हैं कुछ कहने की. मैंने तो आज तक कराची यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देखा. तो एकेडमिक्स आर टू बी ब्लेम्ड.